اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام زائرین مسجد نبوی شریف میں حاضری دینے کے لیے آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. سبھی زائرین دیکھیے آئیے. مدینہ 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 مدینہ، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. عرش اعظم سے جس کی بڑی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم تیرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے قریب حاضر آئے. ہمارے تمام صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. ہم سب کی عزت، آبرو، جان، مال، ایمان، اعمال، آبرو کی حفاظت فرما. ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. اے اللہ مزید مدینے کی بادب حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو اور ہمارے والدین کو، اے اللہ ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، سارے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کو حرمین شریفین بالخصوص مدینہ پاک کی بادب حاضری کی سعادت نصیب فرما. ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہم پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ان کو اولادی عطا فرما. اے اللہ قرض والوں کو قرض سے نجات عطا فرما. پریشان حالوں کو پریشانیاں دور عطا فرما. پروردگار ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں بھلائیاں عطا فرما. اے کریم ہم پر کرم فرما. اے رحیم ہم پر رحم فرما. ہمیں موت آنے سے پہلے موت کی، قبر سے پہلے قبر کی، حشر سے پہلے حشر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہم سب کو بھلائیاں عطا فرما. اپنا خاص کرم فرما، فضل فرما. ہر مولا کریم ہر پریشان حال مسلمانوں کو پریشانوں کو دور فرما. اے اللہ اس وقت دنیا بھر میں جہاں کوئی مسلمان پریشان حال ہے، مولا کریم تمام مسلمانوں کی پریشانوں کو روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. اچھا یہ والی جو آٹو رکشہ جو ہے یہ مدینے کا آٹو رکشہ ہے. اس کا کام کیا ہے؟ اگر کوئی عمرہ زائر یہاں آتے ہیں، چلنے میں تکلیف دشواری ہوتی ہے اور انہیں ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیور ان کو بٹھاتے ہیں اور دوسرے گیٹ تک پہنچاتے ہیں. مان لیجیے کہ وہ یہاں اس گیٹ پر ہے اور وہاں جاتا ہے تقریباً سے 1-1.5 کلومیٹر جو ہے چلنا ہوتا ہے، اس کے بعد چلنا نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رکشے کے ذریعے سے اسے دوسری طرف پہنچاتے ہیں. یہ مدینے کا رکشہ ہے. کیا ہے جی؟ ایک آدمی چاہے تو بیٹھ کے دیکھ سکتا ہے، سب نہ بیٹھے پھر آ جائے گا. جی 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 ماشاء اللہ. ٹھیک ہے آ جائیے بس. کہتے ہوئے رکشہ جا رہے ہیں. اس طرح جو ہے یہ جو خواتین معذور وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ تک اس رکشہ کے ذریعے آٹو کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے. یہ دیکھیں ٹھیک ہے. اب انہیں باہر لے جا کے چھوڑا جا رہا ہے. توجہ ہے سب کی. اچھا جس زمین پر آپ کھڑے ہیں نا، اصل میں آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے؟ یہ مدینہ ہے. یہی میں اتنا ہی مدینہ ہے. یہیں پر صحابہ کرام کی مزارات وغیرہ مطلب گھر وغیرہ جو ہے یہاں پر تھے. اچھا
मदीने की मिट्टी के बारे में आपने सुना होगा, सुना ना। मदीने असल जो है, आका करीम ने फरमाया कि हमारे शहर मदीना की मिट्टी में शिफा है। उससे मेरा कौन सी मिट्टी है? जिस ज़मीन पर आप खड़े हैं वो मिट्टी है। अब सारी मदीने की जो मिट्टी है वो कहाँ है? बोलो, ज़मीन के नीचे है। अब मार्केट के अंदर, दुकानों के अंदर जो मिट्टी बोलते हैं वो असल में हकीकतन मदीने की मिट्टी नहीं है। कौन सी मिट्टी? जो आका करीम ने कहा वो मिट्टी नहीं है। अगर मदीने की मिट्टी अगर वो बेच रहे, उससे मुराद कौन सी है? जो ये मस्जिद नबी के बाहर है वो वाली मिट्टी, वो आपको भी मिल सकती है। हकीकतन जो हुजूर ने जिस मिट्टी को मदीने की मिट्टी कहा है वो इस मस्जिद के नीचे मौजूद है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। अभी उस मिट्टी को आप निकाल नहीं सकते, सीधे हाथ से पीना चाहिए। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में जीना है, क्या बात है जीने की। सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, हाँ यही चश्मे तर इल्तिजा है मेरी, उनकी फहरिस्त। सफ़ेद गुंबदे वाली बहुत सारे गुंबद इसके अंदर है। एक मीनारे वाली जो मस्जिद नज़र आ रही है, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद गमामा। क्या है जी? गमामा। गमामा अरबी में बादल को कहते हैं। इस मस्जिद का नाम गमामा क्यों है? उसकी वजह यह है, यहाँ पर बहुत सारे तारीखी वाक़यात हुए हैं। गमामा अरबी में बादल कहते हैं, और यहाँ बहुत सारी तारीखी बातें हैं। पहली बात तो ये, आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर नमाज इस्तिस्का अदा की थी। नमाज इस्तिस्का वो नमाज है जो बारिश के लिए पढ़ी जाती है, उसके बाद दुआ की जाती है। तो अल्लाह के नबी ने यहाँ नमाज इस्तिस्का की, दुआ की, तो बादल जो है यहाँ पर तशरीफ लाए और बारिश हुई मदीने में। तो इसलिए अरबी में बादलों को गमामा कहते हैं। इस मस्जिद का नाम क्या है? मस्जिद गमामा। दूसरा यहाँ पर वाकया ये पेश आया था, आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है अपने दौर में, यानी दौर नबवी में, ईद की नमाज, ईदेन की नमाजें जो हैं, ईद उल अजहा की हो या ईद उल फित्र की हो, वो यहाँ पर अदा की जाती थी, इस जगह पर। ये दूसरी तारीखी बात है। तीसरी तारीखी बात यह है कि मदीने मुनव्वरा में मुसलमानों का अपना कोई बाजार नहीं था, यहूदियों का बाजार था। यहूदियों को बड़ा गुरूर था, घमंड था, तकब्बुर था कि वो मुसलमानों को हकीर निगाहों से देखते थे कि मुसलमानों के पास क्या है। तो आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मुसलमानों का बाजार करार दिया कि मुसलमान अपने इज्जत से, शान से अपने बाजार में क्या करेंगे? वो चीजें फरोख्त करेंगे। और चौथी तारीखी वाकया ये है, जो नजाशी बादशाह है हबशी का, उनकी गायबाना नमाज जनाजा जो है वो यहाँ पर अदा की गई। ये तारीखी बातें हैं। ये मस्जिद तकरीबन 1372 हिजरी में शाह फहद के दौर में जो है ये तामीर की गई है, काले पत्थरों वाली, आज से तकरीबन 70 साल पहले। और ये मस्जिद आज भी खुली है। मस्जिद के अंदर आप नमाजें अदा कर सकते हैं, खवातीन के लिए भी जो है नमाज पढ़ने के लिए जगह है। अंदर से भी बहुत खूबसूरत मस्जिद है, इतनी खूबसूरत मस्जिद है, आप अंदर जाएंगे तो आपका बैठने का मन करेगा ही करेगा। तो इतनी खूबसूरत मस्जिद। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे, एक और मस्जिद है, इंशाल्लाह उसकी भी तारीखी बातें इंशाल्लाह वहां बताएंगे। आइए मेरे साथ। मेरा भी नाम हो उनकी फहरिस्त में, मेरा भी नाम हो जिनका रोजाना जाना मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोजा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी
مدینہ مدینے سے مدینہ مدینے میرے مدینہ مروزہ مدینے میں ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. سبحان اللہ. تاریخی بات یہ ہے کہ تاریخی بات کیا ہے، یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپنے دور خلافت میں عیدین کی نماز پڑھائی. دوسری بات کتابوں میں یہ آتا ہے کہ یہاں حضرت ابو بکر اپنے دور خلافت میں جو بازار ہے وہ اپنے یہاں قرار دیا تھا کہ آپ مارکیٹ یہاں ہوگی. اور کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پر جو ہے ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز ادا کی ہو، کیونکہ جتنے مساجد ہیں اگر کسی صحابی کے نام کی ہے تو ممکن ہے وہاں انہوں نے نماز ادا کی ہو، یا کم از کم انہوں نے سجدہ کیا ہے، تو اس بنا پر وہاں پر جو ہے تاریخی مسجد بنا دی گئی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف کے بہت قریب ہے، بالکل غمامہ کے اور بھی زیادہ قریب ہے. مسجد نبوی شریف کے جو باہر جو ہے ایک مسجد ابو بکر ہے، ایک مسجد عمر ہے، مسجد عثمان ہے، مسجد علی ہے، مسجد بلال ہے، مسجد ابو ذر ہے. یہ 6 مساجد جو ہے مسجد نبوی شریف کے باہر ہے. 2 مساجد، ایک اور مسجد غمامہ، 7 مساجد ہے. ایک مسجد کو ہم نے 2 مساجد کی ہم نے زیارت کر لی ہے. پیچھے ایک مسجد ہے مسجد علی، انشاءاللہ وہاں چلتے ہیں، وہاں بھی جو ہے اس کی بھی زیارت کرتے ہیں اور وہاں پر اس کی انشاءاللہ تاریخی باتیں بتائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلو آ جاؤ. اس مسجد کا نام ہے مسجد علی. مسجد علی. تاریخی کتابوں میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ممکن ہے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کیا ہو یا نماز ادا کی ہو. اس لیے کہ جتنے مساجد جس صحابی کے نام پر ہوتی ہیں یا تو ان کا مکان وہاں پر ہوتا ہے یا تو انہوں نے نماز ادا کی ہوتی ہے، کم از کم وہاں پر انہوں نے سجدہ کیا ہوتا ہے، جس کی بنا پر حکومت نے، کیونکہ یہ ترکیوں کے دور کی مسجد ہے. جتنی مسجد میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ترکیوں کے دور ہے، انہوں نے اپنے دور میں یہاں پر یہ مساجد بنائی ہے تو ان کے نام کی، تاکہ ان کی یاد ابھی بھی باقی رہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آگے جو سب سے دلچسپ معلومات جو ہے آگے رہے گی، ایک بورڈ رہے گا، بورڈ کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. آ جائیے. منارہ جو آپ کو مسجد نبوی شریف میں دکھایا گیا نا، یہ ترکیوں کے دور کا منارہ ہے. یہ ان کی نشاندہی، ترکیوں کے منارے بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں. اب ترکی مساجد کے اندر ترکیوں کے جتنے مساجد ہے زیادہ تر مسجد میں اس طرح کے منارے ہوتے ہیں. یہ ان کا انداز ہے ترکیوں کا. یہ سب سے قدیم، سب سے پرانا منارہ ہے مسجد نبوی شریف کے اندر. اس کے بعد یہاں آ جائیں، اسے کہتے ہیں باب السلام. کیا کہتے ہیں جی؟ باب السلام. آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب ہم جو جاتے ہیں سلام عرض کرنے کے لیے، وہ یہ راستہ ہے، سیدھے جانا ہے باب السلام. باب السلام. اس کے بعد جیسے باب السلام سے انٹر ہوں گے نا، اس دیوار کے اس گیٹ کے پیچھے نا ایک پرنالہ ہے. انشاءاللہ اس کی تاریخ میں آپ کو ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتانے کی کوشش کروں انشاءاللہ. تو باب السلام ہے، مردوں کے لیے راستہ ہے. تو سیدھے جائیں گے تو سب سے پہلے جو ہے آقا کریم کو سلام عرض کریں گے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام عرض کریں گے. تو یہ باب السلام ہے. ٹھیک ہے، آ جائیں. جیسے باب السلام سے انٹری ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو سنہری جالی اس طرح نظر آئے گی، بالکل ایسے ہی. تو سب سے پہلے آپ یہاں پر یہ جو کنڈی ہے اس سوراخ کے اندر سے نظر کریں گے اور سلام عرض کریں گے آقا کریم کی بارگاہ میں. یا آقا کریم کی مزار پاک ہے، اس طرف آپ کا چہرہ انور ہے. تو آپ جیسے ہی ادب و احترام میں کھڑے رہیں گے وہ کہیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اور اگر کسی نے سلام کے عرض کہا ہے تو بتائیے یا رسول اللہ فلاں فلاں نے یا آپ کے غلاموں نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے، ان کے سلاموں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیں. اس کے بعد تھوڑا سا آگے آئیں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی مزار پاک جو ہے چہرہ انور اس طرف ہے ان کا. تو حضرت ابو بکر کو سلام عرض کرے اس طرح السلام علیکہ یا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد پھر تھوڑا جائیں گے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پاک ان کا چہرہ انور اس طرف ہے.
तो यहाँ इस तरह अर्ज करेंगे, अस्सलामु अलैका या अबू अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस तरह जो है ये तीन मुक़द्दस हस्तियों पर जो है सलाम इस तरह देंगे। आका करीम पर सलाम, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को सलाम, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला को सलाम, इस तरह अर्ज करेंगे। ठीक है, आगे आते हैं। रियाजुल जन्ना जिसे कहते हैं ना, रियाजुल जन्ना, जन्नत का टुकड़ा। हुजूर ने फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रियाजुल जन्ना, मेरे रोजे और मेरे मिंबर के दरमियान वाली जगह है वो क्या है? रियाजुल जन्ना। इसका मतलब जन्नत का टुकड़ा, जन्नत की कियारी। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिए, मर्द हजरात जब रियाजुल जन्ना में जाते हैं ना, बाज़ लोग जो है मिंबर के इस तरफ नमाज पढ़ते, यहाँ पर मिंबर के उस तरफ जो है वो जन्नत रियाजुल जन्नत नहीं कहलाता, बल्कि मिंबर के इस तरफ नमाज अदा करनी होगी आपको। मिंबर से लेकर कहाँ तक? ये दीवार नजर आ रही है, ये गुंबद खजरा के नीचे जो है ये मज़ार पे आगे, यहाँ से यहाँ तक जो क्या है ये रियाजुल जन्नत कहता है। इसको क्या कहते हैं? मेहराब रसूल। ये वो जगह है जहाँ से आका करीम रऊफ़ करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से नमाजें अदा की जाती है। इसको मेहराब रसूल है। मेहराब रसूल के सामने जो है बिल्कुल एक सुतून आपको नजर आएगा। मेहराब रसूल के सामने शायद ये वाला सुतून, ये जो सुतून है, उस सुतून के नीचे एक जो है और सुतून है, उस सुतून का नाम है सुतून हन्नाना। सुतून, ये जो रियाजुल जन्नत है ना, ये इस जगह पर 7 सुतून है, 7 सुतून अबी लुबाबा है, सुतून हन्नाना है, सुतून अली है, सुतून आयशा है, इस तरह 7 सुतून है। लेकिन इस सुतून की तारीफ क्या है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौरे खिलाफ में उस सुतून को टेक लगाकर जुमा का खुतबा इरशाद फरमाते, टेक लगाकर। लेकिन जब साहबा ने देखा आका करीम को जो है टेक लगाने मुमकिन है कि थोड़ी सी दुश्वारी होती होगी, उन्होंने अपने तरीके से चाहा। आका करीम के लिए उन्होंने एक मिंबर बनाया, लकड़ी का मिंबर, ऐसे, ताकि आका करीम जो है 2 खुतबे के दरमियान जो बैठते ना सुन्नत करीमा, थोड़ा आराम करे। जब सहाबा किराम ने हुजूर की मोहब्बत में जब मिंबर बनाया ना, मिंबर, तो हुजूर उस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाने लगे। तो जब ये मिंबर बना तो वो सुतून जो है रोने लगा, बिल्कुल सिसका लेकर, ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है, सिसका लेकर हुजूर मिंबर से तशरीफ लाए और उस सुतून को बिल्कुल जैसे जानवर पर हाथ फेरते या छोटे बच्चे को चुप कराते, ऐसे चुप कराया, वो सुतून चुप हो गया। उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सुतून से फरमाया, अगर तू चाहे तो मैं तुझे दोबारा दरख्त बना सकता हूँ, खजूर का दरख्त, मैं तारो ताजा बन जाएगा, फिर तू जिंदा हो जाएगा। या अगर तू चाहे तो मैं जन्नत में मेरे साथ रहे। तो हुजूर ने उसके लिए कितने ऑप्शन रखे? 2। तो उसने इस बात को इख्तियार के पसंद किया रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम कि मैं आपके साथ जन्नत में रहना पसंद करूंगा। यहाँ तक कि वो दौरे सहाबा के अंदर भी सुतून रहा, यहाँ तक कि वो शहीद हो गया, सूख गया, तो सहाबा किराम ने इस सुतून को इस सुतून के नीचे जो है दफन कर दिया, और इस सुतून का नाम है सुतून हन्नाना। और इस सुतून, इस पिलर को भी क्या कहते हैं? सुतून हन्नाना। अगर आपको रियाजुल जन्नत में जाने का मिले तो मेहराब के सामने जो सुतून है उसके करीब नमाज पढ़ने की कोशिश करे, वो भी जो है बहुत बाबरकत जगह है। वैसे तो पूरी ये जन्नत ही जन्नत है, इसमें कोई शक की बात नहीं, एक अलग उसकी फजीलत है, वहां पर भी नमाज पढ़ने की कोशिश करे। रियाजुल जन्नत ये है मेहराब रसूल। क्या है? ये वो मेहराब है जहाँ से आका अलैहिस्सलाम के जमाने में भी नमाजें पढ़ाई जाती थी, आज भी इसी मेहराब से नमाज पढ़ाई जाती है। ये मेहराब रसूल देख रहे, उसकी ज़ियारत कर रहे हैं इंशाअल्लाह। अगर आप म्यूजियम में जाएंगे ना, वो म्यूजियम 10 रियाल या 15 रियाल वाला जो म्यूजियम है, मस्जिद वाला म्यूजियम, वहाँ पर इसका मॉडल मौजूद, सेम टू सेम ऐसा। आप अगर घर में बतौर तबरुक रखना चाहे तो वहाँ से हाजियत हासिल करके अपने अलमारी के अंदर इसको रख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बनाया गया। छोटा सा इतना पीस आता है, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। आगे आ जाओ। ये पूरी मस्जिद नबवी शरीफ है, आपको मालूम है, ठीक है। ये जो गुम्बद नजर आ रहे हैं ना आपको, ये गुम्बद स्लाइडिंग गुम्बद, इस गुम्बद जो है पीछे आगे होते हैं, यानी अगर धूप आती है तो गुम्बद बंद हो जाते हैं, जब धूप चली जाती है तो गुम्बद को फ्लैट करके उस तरफ कर देते हैं ताकि अंदर रोशनी आ जाए। और ये जो है इसे कहते हैं जन्नतुल बकी। ये क्या है? जन्नतुल बकी। इसके अंदर 10,000 से जायद सहाबा किराम की कब्र मुबारक इसके अंदर, इस जन्नतुल बकी के अंदर मौजूद है। रोजाना नमाज फजर के बाद इसका गेट खुलता है, ये रास्ता है जाने का नमाज फजर के बाद, और बहुत देर तक इसका गेट खुला रहता है।
हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार का है जन्नतुल बक़ी में। फ़ातिमतुज़ ज़हरा की कब्र का है, कब्र मुबारक जन्नतुल बक़ी में। इसी तरह बहुत सारे सहाबा इकराम, इमाम हसन की जन्नतुल बक़ी में है, अज़वाज मुत्तहरात की जन्नतुल बक़ी में है, अहले बैत अतहार की जन्नतुल बक़ी में। बहुत सारे 10,000 से ज़ायद कब्रिस्तान, कब्र मुबारक इस जन्नतुल बक़ी के अंदर मौजूद है। और जो मदीने में इंतकाल करते हैं उम्रा ज़ायरीन, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतुल बक़ी ही में जो है दफन किया जाता है। इसलिए हम जब भी दुआ करते क्या करें, ऐ अल्लाह मदीने की 2 गज ज़मीन अता फरमा, इसलिए कि हमें भी इंशाअल्लाह यहाँ मदफून होने की अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो ये पूरी मस्जिद है, ये पूरी मस्जिद है, ये गुंबद खजरा है, गुंबद उस्मान है। ये इतनी बड़ी मस्जिद है कि भीड़ के मौके पर तकरीबन 10 लाख नमाजियों की यहाँ पर गुंजाइश है। कितने? 10 लाख नमाजियों की। देखिए अब कितनी बड़ी मस्जिद है। ये पीछे जितनी इमारतें नजर आ रही है ना, ये आने वाले दिनों में सारी इमारतें जो है गिरा दी जाएगी, फिर मस्जिद नबवी जो और वसी कर दी जाएगी ताकि नमाजियों की गुंजाइश और बढ़ जाए। ठीक है इंशाअल्लाह। चलो आगे चलते हैं। मस्जिद नबवी शरीफ के गेट नंबर 325 जो सामने है, ये देखें, ये गेट नंबर 325 है। उसके बिल्कुल सामने एक ज़ियारत है, ये वाली एक ज़ियारत है मस्जिद नबवी शरीफ के 325 नंबर गेट से। एक बाग है, इसका नाम है सक़ीफ़ा बनी सईदा, सक़ीफ़ा बनी सईदा। अच्छा, इसकी तारीख क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ है। आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर कदम मुबारक पे पड़े हैं। आका करीम के कदम मुबारक की बरकतें हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ाहिरी वफ़ात है ना 11 हिजरी को, उसके बाद अभी आका करीम की वफ़ात के 6 दिन में नहीं गुजरे थे, बहुत सारे फितनों ने जन्म लिया। जैसे किसी ने ज़कात देने से इनकार किया, किसी ने झूठा नबूवत का दावा किया, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जो है कोई नया नबी आने वाला नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने उस वक्त ये कहा था, अगर किसी की ज़कात में हिस्से में एक रस्सी भी आती है, अगर वो देने से इनकार करता है तो मैं उसके लिए जंग करूँगा, यानी उससे मैं ज़कात वसूल करूँगा। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने इस बात को महसूस किया कि इस्लाम की भागदौड़ संभालने के लिए इस्लाम की भागदौड़ किसी के हवाले कर देना लाजमी और ज़रूरी है। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आपने तमाम सहाबा को, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने क्या किया, तमाम सहाबा को इस बाग के अंदर जमा किया। पहले बाग खुला होता था, 2017-18 में हमारा आना हुआ तो खुला रहता था, लोग अंदर इसकी ज़ियारत करते थे। इस बाग को अभी बंद कर दिया गया, नहीं आप बाहर से ज़ियारत करेंगे लेकिन अंदर जा नहीं सकते। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सहाबा इकराम को जमा किया, सारे अंसार भी थे, मुहाजिरीन भी थे, और फरमाया किसी न किसी को खलीफा चुनना चाहिए, वरना फितने जो है दिन ब दिन उभरते चले जा रहे हैं, फितने बढ़ते चले जाएंगे। तो बहुत सारे सहाबा इकराम का ये मशवरा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बना दिया जाए। किसको? हज़रत उमर फ़ारूक को। एक और साहबी थे, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी वफ़ात से कबल, जब आप बिस्तर अलालत पर थे, यानी आप बीमार थे, 17 नमाज़ें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसल्ले पर पढ़ाई है। कितनी नमाज़ें? 17। तो ऐसे कई इशारे हैं कि आका करीम के बाद अगर खलीफा किसी को बनना है तो वो अबू बकर है। ऐसे कई हैं। हिजरत भी आप जो है आका करीम के साथ अबू बकर ने की, चाहे हज़र में हो सफ़र में, हमेशा आका करीम से बहुत ज़्यादा करीब थे। उसके बाद लोग, किसी ने कहा कि हज़रत उमर से कहा कि आप ऐसा कीजिए, आपको हम खलीफा मानते हैं, आप खलीफा बन जाए मेरे। इतना सुनना था। उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ने फ़ौरन अबू बकर के हाथ में अपना हाथ दिया और फरमाया कि ऐ अबू बकर, आप सबसे ज़्यादा आका करीम के करीब हैं, सबसे ज़्यादा आका करीम के राज की बातें आप जानते हैं, और इस वक्त इस्लाम की भागदौड़ अगर कोई संभाल सकता है तो वो मेरे नज़दीक आप हैं। लिहाजा कोई तस्लीम करे या ना करे, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ और आपको मैं अपना खलीफा मानता हूँ।
तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब बैत करते हुए देखा तो बहुत सारे सहाबा इकराम दौड़ते आए कि हम भी आपके हाथ पर क्या करते हैं, बैत करते। चुनाचे बहुत सारे सहाबा इकराम, यूँ समझो कि तमाम सहाबा इकराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के हाथ पर बैत की और आपको खलीफा तस्लीम किया। ये जहन में रखो कि बहुत सारे लोग ये जुमला कहते हैं खलीफा बनाए गए हैं, बल्कि खलीफा तो हुजूर ने उनको बनाया है, आप चुने गए हैं, आप चुने गए हैं। उसके बाद अबू बकर जो है जमात में नज़र डालते हैं तो 2-4 सहाबा जो ख़ास थे वो उनको नज़र नहीं आते। आप उनको तलब करते हैं कि फ़ला कहाँ है, फ़ला कहाँ है, फ़ला। तो सारे सहाबा जो नहीं थे वो भी हाजिर आते हैं, तो उनके सामने भी कहते हैं कि सबों ने मुझे खलीफा तस्लीम किया कि तुम्हारी राय क्या है। तो सब कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हम आपको अपना खलीफा मानते हैं, आप हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबों को मस्जिद नबवी में तलब करते हैं और आप एक ज़बरदस्त खुतबा इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं तुम्हारा खलीफा ज़रूर हूँ, लेकिन कहीं पर अगर मैं कोई काम करने में कोताही कर बैठूँ, लग्जिश करूँ, ज़रूर मेरी उस काम पर तुम क्या करो, मुझे रोको टोको। और अगर मैं ऐसा काम करूँ तो वाकई अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक को जायज़ और अच्छा काम है, तो उसमें मेरी क्या करो, मदद करो। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है खलीफा चुने गए। तो ये जो बाग है, जहाँ पर ये बाग है, इस बाग का नाम क्या है? सक़ीफ़ा बनी सईदा। बोलिए, सक़ीफ़ा बनी सईदा। तो ये मस्जिद नबवी शरीफ के गेट नंबर 325 से बिल्कुल सामने एक ज़ियारत है। मैंने चाहा कि इसकी भी मैं आपको ज़ियारत कराऊँ और इसकी तारीख़ी बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको ऐसी ज़ियारत से मुशर्रफ होने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए और सबों को अल्लाह ताला हरमैन शरीफीन की इबादत हाज़िरी की सआदत नसीब फरमाए और हमारी इस हाज़िरी के सदक़े अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में भलाई अता फरमाए। आमीन बिजाहिल सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही, एक मीनारे वाली आ रही मस्जिद? जी जी माशाअल्लाह, एक मीनारे वाली, सफ़ेद गुंबद वाली। जी जी बिल्कुल, एक मीनारे वाली मस्जिद दिखा रहे हो, लाइट के बाजू में। जी 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 दिख रही। हाँ। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद अबू ज़र। क्या है जनाब? मस्जिद अबू ज़र। जनाब हाजी साहब, पानी जी। का टैंकर। अबू ज़र, इसे मस्जिद सजदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तवज्जो चाहता हूँ सब लोग। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन? तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ साहिब रसूल है। तवज्जो है सबकी। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौलत कदा से बाहर तशरीफ़ लाए, मतलब अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ़ लाए। आप फरमाते हैं कि मैं भी आपके पीछे हो लिया, यहाँ तक कि आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सामने मस्जिद आपको नज़र आ रही है एक मीनारे वाली, वहाँ एक बाग था, तो उस बाग में तशरीफ़ ले गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़ा ठंडा बाग था, अबू बकर भी पीछे हो लिए। आपने एक सजदा किया, लंबा तवील सजदा। हज़रत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं, मुझे इस बात का गुमान हुआ कि शायद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह परवाज़ कर चुकी है। उसके बाद में जब करीब हुआ तो हुजूर ने अपने चेहरा अनवर को सजदे से उठाया और फरमाया, अबू ज़र तुझे क्या हुआ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं तो डर गया था कहीं आप अल्लाह के नज़दीक चले ना गए हो। यानी आका करीम ने फरमा अर्ज़ की, कहीं आपकी रूह परवाज़ ना करेगी, मैं तो डर गया। तो हुजूर ने फरमाया, अय अबू अब्दुर्रहमान, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए थे और अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, जो शख्स, जो उम्मत आपकी आप पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन पर रहमतें नाजिल फरमाता है। जो शख्स आप पर सलामती भेजता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर सलामती नाजिल फरमाता है। तो आज एक जो मस्जिद बनी, एक मीनारे वाली मस्जिद, एक तारीख़ी मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम सजदा इसलिए है कि अल्लाह के नबी वहाँ पर एक लंबा तवील सजदा किया था और उस मस्जिद को अबू ज़र के नाम से भी याद किया जाता है। तो एक तारीख़ी मस्जिद है जिसकी हमने अभी आपको ज़ियारत करवाई। ठीक है, इंशाअल्लाह आगे चले।